لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، طاقت کی بنیاد پر گناہ مت کرو، دولت کے غرور میں گناہ مت کرو، زندگی کے غرور میں گناہ مت کرو۔ وہ میرا رب ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر کی مٹی میں ملا دیا۔ دودھ اور چندن سے غسل کرنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ سروں کے اوپر سچے موتی کے تاج رکھنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں، ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور سن لو، زنا وہ بدترین جرم ہے، شراب و شباب وہ بدترین جرم ہے، موسیقی وہ بدترین جرم ہے۔ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس بدترین عذاب میں مبتلا کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست صرف ان تک محدود نہیں رہتی، ان کی اولاد تک پہنچ کر کے رہتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو کرنے کے بعد معاف کر دیے جاتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف کیے جاتے ہیں، وہ کریم ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کی جائے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست صرف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے، دوسروں کو نہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست نسلوں تک باقی رہتی، اور بعض نیکیاں ایسے کہ جس کی برکتیں نسلوں تک باقی رہتی۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ کھلنے والا تھا، ننگا ہونے والا تھا، اور لوگوں کے ہاتھ لگنے والا تھا، تو اللہ نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیج کر ان یتیموں کے خزانوں کو چھپانے کا حکم دیا اور وہاں دیوار تعمیر کروائی۔ کیا اللہ کا پیغمبر دیوار تعمیر کرنے کے لیے آتا ہے؟ کیا اللہ کا نبی کسی کی دیوار بناتا ہے؟ گارا مٹی اینٹیں رکھنا کیا کسی نبی کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن میرے اللہ نے اپنے 2 جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دیا کہ ان کی دیوار تعمیر کرو۔ سید المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان یتیم بچوں کو آخر یہ فضیلت کیوں ملی کہ ان کی دیوار تعمیر کرنے کا حکم اللہ نے 2 پیغمبروں کو عطا فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ اوپر کی 11ویں پشت میں جو ان کا دادا تھا وہ نیک انسان تھا، 11ویں پشت میں اوپر کا دادا نیک انسان تھا، تو اس نیک دادا کی برکتیں 11ویں پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہوئی نظر آتی۔ اگر اوپر کا دادا نیک ہو تو اس کی برکتیں 11ویں پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہے، اس شان سے کہ اللہ کے پیغمبر ان کے خزانے کے محافظ بنتے ہیں، ان کی دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ اور اگر اوپر کی پشتوں میں مجرم ہو تو ان کے گناہوں کی نحوست نیچے کی اولاد کو بھی ملتی۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 7 صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک۔ اچھے برے بادشاہ آئے، اکثریت بروں کی تھی، اچھے بہت کم تھے۔ انہوں نے ایک مرد نے اپنے حرم میں 500 لڑکیوں کو رکھا، اپنے جنس کی تسکین کے لیے مشرک کافرہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں رچائی۔ کسی نے سورج کو خدا کہا، کسی پلید نے اپنے آپ کو اللہ کا خلیفۃ الاکبر کہا، کسی نے کہا کہ اذان میں میرا نام آتا ہے۔ اس طریقے کے بادشاہ بھی ہوئے، لیکن ان کے زنا، ان کے عشق، ان کی عیاشیوں کی داستانیں یوں ہے کہ ایک مغل شہزادہ ایک لڑکی کو اپنی بغل میں لے کر کسی پارک میں بیٹھا تھا، راستہ کھلا ہوا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ اس جوان لڑکی نے کہا، میری جان، میں نے ابھی تک کسی انسان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میری خواہش ہے کہ میں کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھوں۔ اس نے بغل کی لڑکی کو جو اس کی داشتہ تھی، اس کی منکوہا نہیں تھی،
उसके साथ उसका निकाह नहीं हुआ था। उसने कहा बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम किसी को मरता हुआ देखना चाहती हूँ, जाने मन अगर तेरी तमन्ना ये है तो जरा अब किसी को मरते हुए देख ले, देख। और उसके बाद उसने अपनी बंदूक को हरकत दी और गोलियां एक चलने वाले किसी गरीब पर चला दी। उसका लाशा तड़पने लगा तो मुस्कुरा करके कहता है, देख लो आपकी खातिर हमने एक को कत्ल कर दिया है, अब तक किसी को मरते नहीं देखा था, मरते हुए देख लो। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। उसके बाद पता है मुगलों को जब जवाल आया, बहादुर शाह जफर अगरचे मुजरिम नहीं था, अगरचे बदकार नहीं था, अगरचे जानी नहीं था, बहादुर शाह जफर उन लोगों के साथ रहता था जिन्हें दुनिया फजले खैराबादी के नाम से जानती है, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के नाम से जानती है, काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। इतने मुकद्दस उलमा के दरमियान रहने वाला बहादुर शाह जफर जिस वक्त उनको जवाल आया और अंग्रेजों की कैद में आया तो उसने जेल में आने के बाद दूसरी सुबह को कहा, सुबह के वक्त तो मुझे नाश्ते की आदत है, नाश्ता लाओ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अभी नाश्ता पेश किए देते हैं। जब एक तश्त खूबसूरत ला करके रखा गया, उस पे कपड़ा ढका हुआ था, बहादुर शाह जफर को कहा गया, बादशाह आपका नाश्ता आ गया। जैसे उसने कपड़ा हटाया, उसकी आंखों में अंधेरा आ गया, उसका दिमाग चकराने लगा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बादशाह ने रो करके कहा था, अगर मेरे बाप दादाओं ने अय्याशियां न की होती तो शायद ये दिन मुझे देखना नसीब न होता। ये तारीखी जुमला बहादुर शाह जफर ने क्यों कहा था? इसलिए कि जैसे ही उसने तश्त से कपड़ा हटाया तो उसने क्या देखा, उसके दो बेटों के उबले हुए सर उसे नाश्ते के तौर पर पेश किए गए थे। उस वक्त बहादुर शाह जफर ने कहा था, आज का सवाल मेरे बाप दादाओं के जराइम की सजा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाप दादा नेकियां करते हैं, उसकी बरकतें भी नस्लों को मिलती है। बाप दादा अय्याशियां करते हैं, उसकी नहुसत भी नस्लों को मिलती है। माल कमाने वालों, सर्दी और गर्मी बारिश की परवाह न करते हुए तुम माल इकट्ठा कर रहे हो, रातों दिन दुकान पर हो, रातों दिन तिजारत में हो, रातों दिन ड्यूटी पर हो, न सर्दी की परवाह, न गर्मी की परवाह, न बारिश की परवाह, न दिन की परवाह, न रात की परवाह, न अपनों की परवाह, न बेगानों की परवाह। लोगों के प्रोग्रामों से जी चुरा रहे हो, लोगों के फंक्शनों से अलग हट करके सिर्फ एक मकसद, कमाना कमाना कमाना। क्यों कमा रहे हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सरों का पसीना तलवों तक आ रहा है, वजह क्या है? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मैं कहता हूं बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ माल कमा कर देने से बेहतर नहीं हो सकता। अगर तुमने माल औलाद को दे दिया और तुम्हारे करतूत अच्छे न रहे और तुमने जराइम में अपनी जिंदगी को गुजारा तो माल होने के बावजूद तुम्हारी नस्लों को तुम्हारे गुनाहों की नहुसत पहुंच कर रहेगी। वो बेचैन और बेकरार जिंदगी गुजारेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपको हैरत हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि बाप दादाओं के जराइम की नहुसत औलाद को मिले। ये बात हुजूर गौसे पाक ने भी कही थी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अहले इराक कभी आबाद न रह सकेंगे क्योंकि खूने हुसैन का बदला उनसे क़यामत तक लिया जाता रहेगा। खूने हुसैन उन्हें कभी चैन से रहने नहीं देगा। और आप देखें, जब से इमाम हुसैन की शहादत हुई है उस दिन से लेकर के आज तक के अल्लाह अकबर तकरीबन 13 सदियां बीत चुकी है। पूरा 100 साल अहले इराक कभी खुशी की जिंदगी नहीं गुजारते। इराक संवरता है फिर उजड़ता है, फिर संवरता है फिर उजड़ता है, फिर संवरता है फिर उजड़ता है। क्या बगदाद को शहरों की दुल्हन नहीं कहा जाता था? अरुसुल बिलाद कहलाने वाला बगदाद, हलाकू और चंगेज ने उसकी ईंट से ईंट बजाई थी। उसके बाद बहुत तमन्नाओं से, बहुत अरमानों से मुस्लिम ताजदारों ने उसे संवारा था। अभी सौरा था बगदाद। लोग कहते थे अब बगदाद कभी नहीं उजड़ेगा, लेकिन पूरी सदी मुकम्मल न हुई थी कि बगदाद फिर उजड़ा। तख्तो ताज को फिर धूल चटाया गया, सरों से फिर गेंद खेली गई, दजला में फिर खून बहा। अल्लाह अकबर। जब जिस वक्त मौजूदा बुश का बाप उसने बगदाद और इराक को तबाह किया, फिर लोगों ने कहा था सद्दाम ने बगदाद को इतना संवार दिया है कि अब घरों के अंदर नल की टोटियां सोने की हो गई है। अब कोई बगदाद की तरफ या इराक की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि मौजूदा बुश ने फिर बगदाद की और इराक को
कि ईंट से ईंट बजाई। सद्दाम की शहादत के बाद, अल्लाह अकबर, और बुश के जवाल के बाद फिर लोगों ने कहा था अब जंग के आसार खत्म हो गए हैं, अब फिर ठंडक आ गई है, अब अमेरिका की फौज निकल रही है, अब बगदाद फिर दुल्हन बनेगा, अब इराक फिर सौरेगा, अब इराक के अंदर फिर बहारें आएगी, अब इराक उसी दौर का इराक होगा, गौसुल आजम के दौर का इराक, इमाम गजाली के दौर का इराक। इस तरीके से लोगों ने कयास आराइयां की थी। क्या कोई ये तसव्वुर कर सकता था कि लंबी दाढ़ियां रखने वाले दाइश फिर कभी इराक के कातिल बनेंगे? लेकिन लोगों ने देखा अमरीकी तो बम से उड़ा रहे थे, दाइश ने छुरी से उनकी गर्दनों को काटा है। ये क्या है? ये उनके बाप दादाओं की कमाई है जो औलाद को मैसर है। हालांकि हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ है, लेकिन मिसाल देने के लिए अर्ज कर रहा हूं, बाप दादाओं के करतूत नस्लों तक के उनकी नहुसतें मिलती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अल्लाह ने तुम पर माल की फरावानी की। आज नासिक में या महाराष्ट्र में या पूरे मुल्क हिंदुस्तान में 90% मकानात ऐसे हैं, बल्कि उससे ज्यादा, कि जिनके घरों में दिन में 3 मर्तबा खाना पकता है। 3 मर्तबा घर में खाना खाने वाले फिर पिज्जा से भी अपना पेट भरते हैं। कोई लाइट नाश्ते के नाम पर, कोई बेड टी के नाम पर, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर, फिर अपने पेट के अंदर जो है वो खाना डालता है। गोया के 3 मर्तबा घर में और 2-3 मर्तबा बाहर हर इंसान खा रहा है। लेकिन खा करके जराइम करने वालों, अल्लाह का कुरान तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा है, जब कुदरत फरावानी देती है तो कुदरत तुम पर निगाह भी रखती है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। तुम्हारे अंदर कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं कि तुम नमरूद जैसा काम करो फिर भी अजाब से बच जाओ, फिरौन जैसा काम करो फिर भी अजाब से बच जाओ। बल्कि ये बात मैं कहना चाहता हूं उलमा की मौजूदगी में, मेरे असातिज़ा बिलखुसूस मेरे उस्ताद मुशफिक और मेहरबान उस्ताद यहां मौजूद है, मैं गलती करूंगा वो मेरी जरूर इस्लाह करेंगे। जो जराइम कौमे फिरौन करती थी उससे बढ़ करके हम गुनाह कर रहे हैं, उससे बढ़ करके हम जराइम कर रहे हैं, इसलिए कि वो कौमें दूर जा करके गुनाह करती थी। हमने अपने घर को गुनाह का जंगल बना दिया है, हमने अपने घर को अय्याशियों का जंगल बना दिया है, हमने अपने दौलत कदों को ऐश कदा बना दिया है। कल तक के गुनाह के लिए लोग दूर दूर का सफर करते थे, माँ बाप से छुप कर गुनाह करते थे, भाइयों से छुप कर गुनाह करते थे, बेटों से छुप कर गुनाह करते थे। हमने गुनाहों के आलात अब अपनी मुट्ठी में ले लिए हैं। बहुत दिन तक के ये जराइम की जिंदगी न किसी की रही है, न आपकी हमारी रहेगी। एक दिन वो जरूर आएगा, ये रात की रंगीनियां तुम्हें तुम्हारी कब्र की उजड़ी हुई रातों को से 2-4 कर देगी। ये गुनाह की आबादियां तुम्हें मुजरिम बना करके शहर खामोशा तक लेकर के जाएगी। यही कुछ कम न था कि हमने मस्जिद वीरान की, यही कुछ कम न था हमने सूदी कारोबार शुरू किए, यही कुछ कम न था कि हमने माँ बाप की नाफरमानी की, यही कुछ कम न था कि हमने बीवियों पे जुल्म किया। ये जराइम ही कम न थे। कमेंट शेयर जरूर करिए।